Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss all the practical reasons why a parent needs to be confident at the workplace. This will be a very important video especially for the new parents, and I will talk about all the reasons why you need to be confident at the workplace, and I will also provide you some solutions by which you will be able to feel more confident at your work. So please do watch this video till the end, do like it, do subscribe to the channel, and do share this video with as many people as you can. So let's start. Now generally new parents, they find it very difficult to feel confident at the workplace because उनकी लाइफ में काफ़ी नए नए चेंजेस होते हैं, काफ़ी एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. मे बी दे हैव नॉट स्लेप्ट वेल ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू नाइट्स and they are devoid of any sleep and पूरी life after becoming a parent इधर से उधर हो जाती है for the new parents. तो इस reason से हो सकता है they do not feel that work is their utmost priority in life and that is a natural feeling, but what may happen is they may not feel very confident when they are at the workplace due to this. So while it is very natural to have that feeling of not being confident at workplace, but there are some fallouts for you if you are not confident at work. तो पहला मैं आपको fallout बताना चाहूँगा that your performance is affected when you do not feel confident at workplace. तो please realize paternity या maternity leave के बाद when you return to the office, when you return to work, the expectations from you will be the same as how they were before you became a parent. तो let's say आप parent बनने से पहले 5 टास्क ख़त्म करते थे, तो parent बनने के बाद जब आप जाते हैं after completing your paternity और maternity leave, उसके बाद भी expectation होती है कि आप इन 5 टास्क को पूरा करेंगे. तो what happens is since you are not feeling very confident now, हो सकता है पहले आप इन 5 टास्क को 8 घंटे में ख़त्म कर लेते थे और अब आपको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे इन टास्क को ख़त्म करने में. सो ऑन दी वन हैंड यू नीड टू गो अर्ली टू योर होम, बट इट इज़ टेकिंग मोर टाइम फॉर यू टू कंप्लीट दिस टास्क, सो यू मे हैव टू स्टे टिल लेट इन दी ऑफिस कंपेयर टू बिफोर. तो उससे आपको कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है. तो ये पहला फॉल आउट है दैट योर परफॉर्मेंस गेट्स अफेक्टेड. नाउ सेकेंडली, डूइंग सेम टास्क्स, यू आर डूइंग सेम टास्क एट योर वर्क, बट you will feel that you are not getting appreciated enough now, since you are not very confident now, because in corporate, people who are very confident, who are very energetic, they get good appraisals, they get the promotions, the hikes, the appraisals. बट पीपल हु आर नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, उनके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट रहता है. दे मे बी डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क एज द अदर पीपल, बट ड्यू टू दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देन दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अफेक्ट्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड उस वजह से आपकी ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस पर, आपके ऑल टुगेदर अप्रेजल पर भी अफेक्ट पड़ता है. तो you may be doing the same tasks now, but you may not be appraised well when you are not feeling confident at the workplace. ये था point number 2. Thirdly, continuing the second point, many parents after they go back to work after becoming a parent, they feel FOMO. They have this FOMO, fear of missing out. They have this FOMO that they are falling behind their colleagues, their peers. उन्हें ऐसा फॉर्मो लगता है कि बाकी लोग जो हैं उनके कलीग्स पीयर्स उनसे आगे निकल रहे हैं एंड वो कहीं दे आर लेफ्ट बिहाइंड. उस रेस में अपने कलीग्स के साथ वो काफ़ी पीछे रह रहे हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा फॉल आउट है. जब आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं तो आपके मन में इस तरह का फोमो आ सकता है, फोमो क्रिएट हो सकता है. एंड अगेन ये एक तरह का एक साइकिल है दैट यू फील फोमो, देन इट हर्ट्स योर कॉन्फिडेंस, इट हर्ट्स योर कॉन्फिडेंस, यू फील मोर फोमो. तो आप ट्रैप हो जाते हैं इस तरह के एक पेनफुल साइकिल में. आगे के पॉइंटर्स में मैं आपको बताऊंगा कुछ सॉल्यूशंस जिससे आप
और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं एट योर वर्क प्लेस, स्पेशली व्हेन यू गो बैक टू वर्क आफ्टर बिकमिंग अ न्यू पेरेंट. हाउ यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंट एट द वर्क प्लेस, उसके मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ. तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहें एंड इन पॉइंट्स को आप कहीं पर नोट भी कर लें. एंड आई एम प्रेटी श्योर अगर आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप पहले दिन से काफ़ी चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में, अपने कॉन्फिडेंस लेवल में. तो पहली चीज़, प्लीज़ डू नॉट टेल योर कलीग्स अबाउट योर चैलेंजेस एट होम. तो हो सकता है आप घर पर बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एज अ न्यू पेरेंट. हो सकता है आपकी स्लीप काफ़ी अफेक्टेड है, योर बेबी इज़ क्राइंग इन द नाइट सो यू आर नॉट स्लीपिंग, या और एडजस्टमेंट्स में आपको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं. प्लीज़ रियलाइज़ दैट योर कलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स अलग होते हैं इन लाइफ एंड योर कलीग्स दे हैव अ डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर लाइफ, बट योर कलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स. तो आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी है. आप अपने कलीग्स के सामने अपना एक्सपीरियंस मत शेयर करें, जो भी आपका शुरू में थोड़ा एडवर्स एक्सपीरियंस ही होता है आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट, उसको मत शेयर करें. बिकॉज बाकी जो आपके कलीग्स हैं वो आपकी बात सुनेंगे, आपको बताएंगे कि अच्छा ये गलत है, ये सही है, आपके साथ गलत हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन नो वन विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. At the end, you have to help yourself out in this case. In corporate, no one can and no one will be able to help you out. Right? तो आप अपने कलीग्स के सामने काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, बट उससे आपकी लाइफ में कुछ सुधार कोई नहीं कर पाएगा. You have to help yourself. And what happens is after you start telling your colleagues about your experiences, उससे आपका कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है. राइट. तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है तो आप अपने बारे में एक पॉजिटिव ऑरा रखें एट वर्क. ये था सोल्यूशन नंबर 2, दैट हैव दैट पॉजिटिव ऑरा अबाउट यू. सी एट होम एनीथिंग मे बी हैपनिंग, यू मे बी एक्सपीरियंसिंग सम डिफ़िकल्टीज एट होम, बट वर्क प्लेस पर उसके बारे में डिस्कशन ना करते हुए आप उसको टोटली अपने दिमाग से निकाल दें व्हेन यू आर एट वर्क. तो वर्क पर हैव दैट पॉजिटिव ऑरा जैसे आप पहले रखते थे बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट, कि आप अपना 8-9 घंटे जो भी आपके वर्क प्लेस पर नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स हैं, उतने 8-9 घंटे आप पूरा पॉजिटिव ऑरा के साथ काम करें. सो दैट योर अदर कलीग्स पीयर्स विल ऑल्सो सी दैट ओके यू हैव दैट पॉजिटिव ऑरा अबाउट यू. इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. एंड अगेन एज वी डिस्कस इन कॉर्पोरेट, people who are confident, who are good at communication and at soft skills, it is very high probability of these people getting good promotions, good hikes, good appraisals. तो आप अगर कॉन्फिडेंट फील करेंगे एट वर्क, आप अपने बारे में एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखेंगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एट द एंड ऑफ द ईयर एज वेल, ड्यूरिंग योर अप्रेजल डिस्कशंस, ड्यूरिंग योर हाइक एंड प्रमोशन डिस्कशंस ऑल्सो. तो ये भी आपको सोल्यूशन काफ़ी हेल्प करने वाला है. डू मेक अ नोट ऑफ इट. नंबर 3, प्लीज़ लेवरेज द न्यू स्किल्स विच यू हैव लर्नड एज अ पेरेंट एट योर वर्क प्लेस. तो एज अ पेरेंट देर आर सम स्किल्स विच यू लर्न नेचुरली, जैसे कुछ सॉफ्ट स्किल्स, कुछ लीडरशिप स्किल्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स आप सीखते हैं व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, एंड वो नेचुरली आप सीखते हैं. Not that you are trying to learn these skills by doing something, but naturally एक पेरेंट बनने के बाद आप में सॉफ्ट स्किल्स, कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कुछ लीडरशिप स्किल्स, इनमें काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा. तो डू ब्रिंग दी स्किल्स टू योर वर्क प्लेस एज वेल, एंड वंस यू ब्रिंग दी स्किल्स टू योर वर्क प्लेस, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल. बिकॉज जब बाकी लोग आपको देखेंगे, जैसे मैं राहुल का एग्जांपल लेता हूँ ऑफ एन इमेजिनरी कैरेक्टर इन माय वीडियोस, तो योर बॉस और योर कलीग्स विल से दैट ओ माय गॉड, राहुल बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट ही यूज्ड टू स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस, बट नाउ आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट राहुल हैज़ बिकम a conflict solver, he has become a conflict resolver, he has started resolving conflicts of people rather than causing them.
तो आपके कलीग्स बॉस भी रियलाइज़ करेंगे आप में ये जो चेंज आए हैं, ये जो नई आपने traits and qualities and skills सीखी हैं after becoming a parent, and that will also help you build your confidence and improve your confidence level. तो ये था solution 3. Solution 4, have a solid support system at your home as well. तो जब आप realize करते हैं that there is someone at your home to take care of your baby and there is not a 100% dependence on you, that also builds confidence in you. तो मैं यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करूँगा दैट इफ़ बोथ ऑफ दी पेरेंट्स आर वर्किंग, तो दोनों पेरेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों पेरेंट्स के लिए बेबी को संभालना शायद इम्पॉसिबल हो, तो अपने मदर को या फिर अपनी मदर इन लॉ को आप ज़रूर इनवाइट करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज़ थोड़े टाइम हमारे साथ रहिए जब तक बेबी बहुत छोटा है, बिकॉज़ हमें ऑफिस जाना होता है या घर पर भी काम करना होता है, तो वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी. तो रिक्वेस्ट योर मदर और मदर इन लॉ टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, जब बेबीज़ को काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है ऑफ सपोर्ट. एंड इफ़ ड्यू टू सम रीजन्स दैट योर मदर इन लॉ दे आर वेरी ओल्ड or they are not able to travel to your place where you stay, in that case hire a nanny service. I will recommend that either you invite your mother-in-law or hire a nanny service so that you have a good strong support system at your home as well. तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस लगेगा इन दैट केस कि चलिए मेरे ऊपर डिपेंडेंस नहीं है इंटायरली, कोई है घर पे मेरे बच्चे को संभालने वाला. एंड आई नो काफ़ी लोग आप में से सोचेंगे कि नैनी सर्विस कम्स एट अ कॉस्ट, बट इफ़ यू सी द कॉस्ट विच यू विल हैव टू पे फॉर अ नैनी सर्विस विल बी मच लेस देन द अप्रेजल द हाइक विच योर कंपनी कैन गिव यू इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एट द वर्क प्लेस. सो डेफिनेटली इस तरह का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करें एंड यू विल फील एंड यू विल सी दैट नैनी सर्विस के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है जो आपको हाइक प्रमोशन मिलने पर जो बेनिफिट मिलने वाला है. राइट, सो हैव अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम एट होम. फिफ्थ सोल्यूशन इज प्रोएक्टिवली टेल योर एम्प्लॉयर दैट यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अप्रेजल दिस ईयर एज वेल. काफ़ी केसेस में ये होता है, स्पेशली द न्यू पेरेंट्स, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि अच्छा दिस पर्सन हैज़ बिकम अ न्यू पेरेंट नाउ, सो ही और शी मे नॉट बी लुकिंग फॉर अ गुड अप्रेजल हाइक प्रमोशन दिस ईयर, so we can concentrate on the other colleagues of this person. तो ये एक natural mindset है of the employer, but आपको as a new parent you have to ensure that you are proactively having that discussion with your employer. So it is very important in corporate that you sell your skills very well. Have a discussion with your employer, with your boss, that sir or ma'am, I am working as hard as I have done till today. This year as well, I am working very hard and I am looking for a good promotion, good hike, good appraisal this year, like every year. Right, so in spite of becoming a new parent, I am working very hard for this appraisal. So your boss will also have that respect for you that okay, this person even after becoming a parent is totally dedicated to the company, to the work. And that will help instill that feeling of confidence in you as well, that you are a very confident person. You can tell your boss that okay, I am in for the appraisal this year. So this is how you can feel more confident at your workplace. I hope you will make a note of these pointers and will implement them, and I'm pretty sure if you start implementing these solutions you will start feeling more confident at the workplace from day one when you start implementing it. So I hope you like the content in this video. Do like it, do subscribe to the channel, do provide your feedback in the comment section, and do share this video with as many people as you can. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.